Sir, is it okay? हाँ जी बेटा, बिल्कुल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। थैंक यू सो मच। Okay, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। Again, can you tell me what was the last topic we discussed? That was election commission or something else? The Constitution of India. Constitution of India. Okay. So was it completed or it is still left? Complete हो गया था ये? Yes, sir. Okay. Then I need to see a syllabus. So far we have completed concept, definition of political science, state, the judiciary, measurements of parties, then election commission of India, in constitution, preamble of Indian constitution. Very good Good morning. morning, sir. So our today's topic is preamble. I think somebody asked me the question in the last lecture as well. So today we are going to discuss preamble of the Constitution of India. Let me first of all share my screen with you so that it will be visible for you. Is it visible now? Yes, sir. Okay, let's start. The preamble to the Constitution of India is a brief introductory statement that sets out guidelines which guide the people of the nation and to present the principles of the Constitution and to indicate the source from which the document derives its authority and meaning. It reflects the hopes and aspirations of the people. Preamble can be referred to as the preface, which highlights the entire Constitution. It was adopted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly and came into effect on 26 January 1950, celebrated as Republic Day in India. Preamble was made in 1947 but adopted in 1949. So down it has the preamble. What is the preamble? It is we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So I told you, I think last time as well, it is kind of an oath in which preamble has declared everything. This is the preamble, and it has declared everything that what is the crux of Constitution, why the Constitution it has been made. So preamble it tells that we, the people of India, this actually it clears that it is not been imposed on us by anyone else. It means it is made by us, we the people of India, democratically, we made this thing and we are adopting this thing. What it said that have solemnly resolved to constitute into a sovereign. हम ये डिक्लेयर करते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं क्या कि हम एक सॉवरन, बिल्कुल ही निष्पक्ष, जिसको बोलते हैं फ्री कंट्री हैं, सोशलिस्ट हैं, जिसमें लोगों का जो मेन हक है, उनका जो फेवर है, दैट इज बीन सीन. सेकुलर है, वी आर नॉट
biased towards any of the religion. Democratic republic. So we are believing in democracy. So and along with we are republic. Republic means, as I've said that, where the supreme power would be president. Uh, Justice and to secure all its citizens. Justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. So these are the things we can, say that this has been added into our constitution. What they are saying. They are trying to tell that. Hold on. Yes, they are trying to tell that what we believe in. We believe in that every citizen would get justice, that everything will be fair. There will not be any inequality on the basis of social, economic, or political. So everything will be unbiased, will be equal to everybody. Liberty of thought and expression. You can express anything, you can think anything, and you can express anything. Your belief, faith, and worship. You are free to believe on anything. You are free to worship anything. So there is no foundation. There are no, what do you call, restrictions. There are no restrictions on you. Equality of status and of opportunity. Equality is, the main, point here. They are stressing that, you will be, like everybody will be equal. ये नहीं है कि किसी का जो स्टेटस है दूसरे से सोसाइटी में कम या ज़्यादा होगा. तो बट दे आर सेइंग, दे आर ट्राइंग टू टेल दैट अपॉर्चुनिटी में और स्टेटस में इक्वालिटी रहेगी, किसी को कोई भी फर्क के नज़रिए से नहीं देखा जाएगा. एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दैट भाईचारा, जो सांझी भाईचारा है, like we belong to one nation, that is India, so that should be communicated, that should be promoted to everyone. Ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. इसमें एक चीज ध्यान रखी जाएगी, that is unity and integrity of the nation. जो नेशन है, जो कंट्री है, उसकी इंटीग्रिटी को मेन प्रायोरिटी दी जाएगी. और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है 26 नवंबर 1949 को डिक्लेयर कर रही है कि हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हियर बाय इनेक्ट कर रहे हैं, एंड गिव टू आवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन. अपने आप को, किसी को नहीं, अपने आप को हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सौंपने जा रहे हैं. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग इट. नाउ दे आर टॉक अबाउट द हिस्टोरिक बैकग्राउंड. Preamble is based on the objectives which are drafted and moved in the Constituent Assembly by Jawaharlal Nehru on 13th December 1946. Dr. B.R. Ambedkar said about the preamble, it was indeed a way of life which recognizes. They are saying कि preamble is based on the objective, किस objectives के ऊपर based है, which was drafted and moved in the Constituent Assembly by जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको फॉरवर्ड किया, इसको प्रेजेंट किया कि ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं 13 दिसंबर 1946 को. और बी आर अम्बेडकर जो हैं, जो इसके फादर माने जाते हैं, एंड सेड अबाउट अ प्रेम्बल. उन्होंने प्रेम्बल के बारे में क्या लिखा है, क्या बोला है. ही सेड दैट इट वाज इंडीड अ वे ऑफ लाइफ. कह रहे हैं कि ये जिंदगी जीने का तरीका है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हमारा जिंदगी जीने का तरीका है. मैन इज अ सोशल एनिमल. अगर हमारे ऊपर कोई किसी तरीके का हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ना दिए जाएं तो इट विल बी लाइक अ जंगल राज. कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी कुछ कर सकता है. सो ऑफ कोर्स देयर इज अ नीड, अ वेरी यू कैन से दैट, बहुत ही ज़रूरी जिसको बोल सकते हैं नीड है ऑफ मेकिंग द गाइडलाइंस. सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है सिर्फ, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ. हमें हमारा ज़िंदगी कैसे जीनी है वो बताता है. विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि लिबर्टी सिर्फ मुझे नहीं है. राइट, इट्स नॉट जंगल राज. लाइक शेर जो है जंगल में रहता है, उसको लगता है कि लिबर्टी सिर्फ मेरी है, बाकी किसी की कोई लिबर्टी नहीं है, किसी की कोई इक्वालिटी नहीं है, सब मुझसे छोटे हैं, सब मुझसे कमज़ोर हैं, तो मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगा. लेकिन यहाँ पे वो चीज़ को बोल रहे हैं कि इक्वालिटी, लिबर्टी,
कि हर किसी को लिबर्टी है, हर किसी को इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी एज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ विच कैनॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम ईच अदर। इसको हम जुदा नहीं कर सकते, हम अपने आप को एक दूसरे से और इन सब चीज़ों से। Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. कह रहे हैं जिस तरह से लिबर्टी और इक्वालिटी जुड़ी हुई हैं आपस में, उसी तरीके से दोनों ही फ्रेटर्निटी के साथ जुड़ी हुई हैं, भाईचारे के साथ, आपसी सांझे भाईचारे के साथ जुड़ी हुई हैं। Quality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. They are suggesting this thing. This is the way we should live. We are human beings. We are cultured people. We are educated people. We are behaved people. So we should know this thing, how we should live into the society. The Supreme Court of India originally stated in the Barbary case prudential reference that the preamble is not an integral part of Indian constitution and therefore it is not enforceable in a court of law. However, the same court in 1973, Keshavananda case, overruled earlier decisions and recognized that the preamble may be used to interpret ambiguous areas of constitution where different interpretations present themselves. So in 1995 case of Union Government versus LIC of India, the Supreme Court once again held that preamble is an integral part of constitution. बहुत बार they are saying a lot of time a question it has been raised that is preamble part of constitution. So they are saying it lot of time, like people think that it's not an integral part of constitution, but it is. It is, as we have seen into the different cases which have been presented in front of Supreme Court of India. So that is how they have said that a lot of time courts they take references in those cases where they feel like constitution is somehow giving the different interpretations. So sometimes it is very hard to understand that what exactly it has said, that what they do, they understand out of it. So to avoid any confusion on this thing, what they are saying that yes, courts sometimes take references from preamble, and this is how they have said that preamble is very important and integral part of the Constitution of India. As originally enacted, the preamble described the state as a sovereign democratic republic, to which the terms secular and socialist were later passed by a captive parliament during the emergency in the 42nd Amendment. So they are saying that these are the things which have been stated that country is what? Sovereign democratic republic, to which terms secular and socially were later passed by. As I told you that हमने पहले भी बात की है कि ये दो जो बातें हैं ये इमरजेंसी के टाइम पे जो है इनको 42nd अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तब इनको इसमें शामिल किया गया. The preamble page along with other pages of the original Constitution of India was designed and decorated by the renowned painter Bihar Ram Manohar Sinha of Jabalpur, who was at Shanti Niketan with Acharya Nandalal Bose at that time. Nandalal Bose endorsed Bihar Ram Manohar Sinha's artwork with any alteration whatsoever. As such, the page bears Bihar Ram Manohar Sinha's short signature Ram in Devanagari lower right corner. The calligraphy was done by Prem Bihari Narayan रायज़ादा. सो ये नाम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ की हम बात कर रहे हैं. तो दे आर सेइंग इसको बनाया किसने है? बिहार राम मनोहर सिन्हा जी ने, जिसको डेकोरेट किया था. एंड कब किया था? दे आर सेइंग इट दैट इज गिवन ओवर देयर. दे आर सेइंग इट कि जब ये नंदलाल बोस जो हैं इनके साथ उन्होंने इसका जो आर्ट वर्क था उन्होंने देखा इसको, उसको पहचाना. एंड दे हैव सेड दैट कि यस कि जो राम मनोहर जी हैं वही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और जो प्रेम्बल की साथ सज्जा है वो यही करेंगे. एंड उनका जो सिग्नेचर है वो देवनागरी, जिसको हिंदी की लिपि का नाम दिया जाता है देवनागरी, राइट लोअर राइट कॉर्नर में उनके जो साइन है वो किए गए हैं. और उसकी जो कैलीग्राफी है दैट इज बीन डन बाय प्रेम बिहारी नारायण जी.
The preamble was amended only once on 18 December 1976, with most of the opposition being jailed during the emergency in India. Indira Gandhi government pushed through several changes in the 42nd Amendment of the Constitution. To this amendment, the word like socialist and secular were added between the words sovereign and democratic, and the words unity of the nation were changed to the unity and integrity of the nation. The American Constitution was the first to begin with the preamble. Both the American and the Indian preamble begin with the we, the people of. सो वो बोल रहे हैं, इसको बता रहे हैं, दे आर ट्राइंग दैट व्हेन इट हैज हैपेंड कि ये इमरजेंसी के टाइम पे ही इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे सब कुछ। तो उन्होंने ये दो वर्ड्स उसमें डाले जो सोशलिस्ट और सेकुलर डाले हैं। इसमें उन्होंने बोला कि हम सेकुलर हैं, किसी धर्म निरपेक्ष देश है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि देश से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, लोगों के हित के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। सो ये दो वर्ड्स उन्होंने डाल के उस टाइम पे जो ऑपोजिशन था वो बहुत कमज़ोर था, जो थे उनको जेलों में डाला गया था उस टाइम पे। सो दैट इज़ हाउ ये अमेंडमेंट की गई। और साथ में ये बता रहे हैं कि प्रेम्बल अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने इसकी जो हमने इंस्पिरेशन ली है वहाँ से ली है। और इसी तरीके से तो दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका जो प्रेम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ दे आर ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्या है, एक एक चीज की बड़ी खोलकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉवरेनिटी, सॉवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। मैंने अभी आपको बताया, इट मीन्स it has a power to legislate on any subject, that it is not subject to the control of any state external power. According to the preamble, the Constitution of India has been pursuance of the solemn resolution of the people of India to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure well-defined objects set forth in the preamble. Sovereignty denotes supreme and ultimate power. It may be real or monarch. It may be real, normal, legal or political, individual or pluralistic. In monarchies, जहाँ पर राजों का राज होता है, sovereignty was vested in the person of monarchs, but in republic form of government, which mostly prevail in the contemporary world, sovereignty is shifted to the elective representative of the people. तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि sovereignty है क्या? Sovereignty है कि सुप्रीम पावर इज दैट विच इज एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड विद इन इट्स ओन स्फीयर। मतलब हम आज़ाद हैं, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जैसे राजाओं में बोला जाता है कि राजा जो है वो इसको एक्सरसाइज करता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला जो लोगों के द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव है वो इसको एक्सरसाइज करता है। तो इस तरीके से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं कि जो ये पावर है ये लोगों के हाथ में। अपना जो राज्य है इसको इस राज का नाम दिया जाता है कि हम अपना राज खुद चला रहे हैं, हमें किसी और की इसमें जिसको बोलते हैं कि दखल अंदाजी हमने इसमें सबको अस्वीकार कर दिया है। External sovereignty of India means that it can acquire foreign territory and also cede any part of Indian territory subject to limitations imposed by the Constitution. On the other hand, internal sovereignty refers to the relationship between the states and the individuals within its territory. कह रहे हैं कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं उसके ऊपर हम अपना डिसीजन पूरा अच्छे तरीके से ले सकते हैं कि जो हमारी बाउंड्रीज है दूसरे कंट्रीज के साथ अगर शेयर कर रही हैं। इंटरनल सोवरेनिटी रिलेट्स टू internal and domestic affairs and is divided into four organs: executive, legislature, judiciary and administrative. तो चार चीज़ों में बंट गई है। वो बोल रहे हैं किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है नया नाम हमारे सामने आया है, अदरवाइज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी हम आगे भी पढ़ चुके हैं। दो इंडिया बिकम अ सॉवरेन कंट्री हैविंग इक्वल स्टेटस विद अदर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, she decided to remain in the Commonwealth of Nations. Pandit Nehru declared that India will continue her full membership of the Commonwealth Games of Nations or her acceptance of the King as a symbol of the free association of the independent nations as such the head of the Commonwealth. Her membership of the Commonwealth nations and that of the United Nations organization do not affect her sovereignty to any extent. It is merely voluntary association of India and it is open to India to cut off this association at her will and that it has no constitutional significance. Commonwealth basically वो nations हैं जो रानी, जो इंग्लैंड का राज है, क्वीन का राज है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और कॉमनवेल्थ नेशन इंडिया भी भाग लेता है, लेकिन
लेकिन इंडिया किसी भी तरीके से रानी क्वीन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। या सेइंग वी आर फ्री, वी आर सॉवरेन। यस, एक आपसी इंटरनेशनल भाईचारे के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ जी, इसमें जो इंडिया है या कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये उसकी पूरी स्वेच्छा है। इफ एनी टाइम इंडिया फील्स दैट वी वांट टू, वी डू नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस, इट विल बी द विल ऑफ इंडिया। इसको कोई फोर्स नहीं किया जा सकता। सो दैट इज कॉल्ड एज द sovereignty. Let's come up to the next point, that is socialist. Before the term was added by 42nd Amendment in 1976, the Constitution had socialist content in the form of certain directive principles of state policy. कह रहे हैं सर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड ऐड नहीं किया गया था सोशलिस्ट जो है, उससे पहले इसके बारे में अगर राय आती थी, बात आती थी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें आती थी। Term socialist used here refer to democratic socialism, achievement of socialist goals through democratic, evolutionary, and non-violent means. Essentially, it means that wealth should be shared equally by society through distributed justice, not concentrated in the hands of few. सोशलिस्ट आपको आगे भी बताया है कि ये लोगों के वेलफेयर के लिए बात करता है। हमारे अगर हम बात करें, आप बहुत सारी कंट्रीज हैं जो जैसे चाइना है, वो सोशलिज्म के ऊपर बिलीव करती है, लेकिन हमारा जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। हम उसको फोर्स नहीं करते हैं। वी डू नॉट फोर्स, लाइक इन चाइना दे फोर्स टू टू इम्पोज सर्टेन काइंड ऑफ रेगुलेशंस। हमारे ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी चीज़ करते हैं लोगों की वेलफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन आइडिया रहता है वो डेमोक्रेटिक ही रहता है। इसमें किसी तरीके से भी कोई फोर्स, कोई वायलेंस इसमें नहीं आएगी, जैसे कि आप चाइनीज कंट्रीज में देख सकते हैं कि वो कई बार इसके अंदर वायलेंस का भी प्रयोग करते हैं। सेकुलर, ये सबको पता है कि किसी तरीके का कोई भी रिलीजन इंडिया में फॉलो किया जाता है और किसी भी बंदे को ये फोर्स नहीं किया जा सकता आप इस रिलीजन को मानो या ना मानो। That is called secularism. Means relationship between the government and religious groups are determined according to the constitutional law. So, सबको समान अधिकार। Democratic, हम इसके ऊपर कंसिडर 1%. The people of India elect their government by system of universal dual franchise, popularly known as 1% 1 vote. डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का अधिकार। किस तरीके से? वोट के थ्रू। हम वोट डालकर अपना जो नेता है, खुद अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुनते हैं और उसको आगे संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं कि वो हमारे बिहाफ पर इस देश को चलाए। रिपब्लिक, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क। रिपब्लिक क्या है? कोई राजा इसका राज नहीं रहेगा, जैसे इंग्लैंड में है रानी, यहाँ पे कोई क्वीन, कोई किंग राज नहीं करेगा। इसका जो राजा है, हमारा जो प्रेसिडेंट है, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। हेड ऑफ स्टेट विल बी इलेक्टेड, नॉट हेरिडेटरी मोनार्क। Thus, this word denotes a government where no one holds public power as a proprietary right. इसको कोई भी अपने मतलब वंश की पावर के रूप में यूज नहीं करेगा कि मेरे पापा राष्ट्रपति थे, अब मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे जो भी लोग चुने जाएंगे, हेड ऑफ द स्टेट चुना जाएगा और रिपब्लिक मेथड के थ्रू लोगों का नेता होगा। Justice, as I told you, justice is all for everybody. Justice stands for rule of law, absence of arbitrariness and system of equal rights, freedom and opportunities in all in the society. Justice har kshetra mein, in every field. There will be social justice. I told you that there will not be any, inequality on the ground of caste, creed, color, religion, gender, place of birth. India stands for eliminating all forms of exploitation for the society. इकोनॉमिक जस्टिस, पैसे के ऊपर किसी को नहीं देखा जाएगा कि हाँ जी इसके पास पैसा ज़्यादा है तो ये जो है ज़्यादा बड़ी हस्ती है, ऐसा कुछ नहीं। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, वेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेटस। पोलिटिकल जस्टिस, पोलिटिकल जस्टिस मीन्स इक्वल, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट इन द पोलिटिकल प्रोसेस। कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो सबके लिए फेयर है प्रोसीजर, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही इलेक्शन लड़ सकते। लिबर्टी, हर चीज की आपको फ्रीडम है,
किसी तरीके से आपको किसी चीज़ के लिए भी नहीं रुका जा सकता अनटिल आप देश के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर रहे हो या किसी और की लिबर्टी को छीनने की कोशिश नहीं कर रहे हो. So liberty means freedom of the activities of Indian nationals. So by concerning that into your mind that you are not disturbing the liberty of any other person. Fraternity, हम बिलीव करते हैं फ्रेटर्निटी के ऊपर कि आपसी भाईचारे के ऊपर किसी तरीके का किसी से कोई भी मैं बैर विरोध, कोई कास्ट, कोई कम्युनिटी, इसके ऊपर हम नहीं रखेंगे. Amendability. In the Barubari case, the amendability and the significance of the constitution came into force. An important and very interesting question was raised relating to the power of the parliament to cede Indian territory to a foreign country. As an interpretation of the Article 3, the Supreme Court had held that the power of parliament to diminish the area of a state as granted in the Article 3 of the Constitution does not cover cession of the Indian territory to a foreign country. Hence, the Indian territory can be ceded to a foreign country only by means of amending the constitution under Article 368. कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें लगता है कि फॉरेन टेरिटरी का इशू इन्वॉल्व है तो उसके लिए आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा. Consequently, 9th Constitutional Amendment Act 1960 was enacted to transfer the Barubari Union to Bangladesh. Supreme Court also held the view that preamble cannot be part of the constitution, but later in Keshananda case, Supreme Court gave a comprehensive verdict. So they are saying कि 1960 के टाइम पे जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जो टूट कर बांग्लादेश बना था तो उसके अंदर हमने भी कुछ जो पार्ट है वो बांग्लादेश को दिया था. एंड दैट इज व्हाट विद द कंसेंट ऑफ हमने इसको केस को सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा जिसमें उन्होंने बोला कि यस उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि कोई बात नहीं है, जो प्रेम्बल है वो इतना इंटेग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. लेकिन नेक्स्ट केस जो केशवानंदा का हो उसमें उन्होंने इसको बोल दिया कि नहीं, जो प्रेम्बल है कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसको फॉलो करते हैं तो हमें एक्चुअल जो डायरेक्ट गाइडलाइंस है वो नहीं मिल पाती हैं, तो हम जो है इसको इसका इंटेग्रल पार्ट मानेंगे. 42nd अमेंडमेंट ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट एंड सेकुलर है वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे इसके अंदर ऐड किए. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दैट इज़ दी योर टॉपिक. इसके अंदर आपको क्वेश्चन एक आ सकता है लॉन्ग भी जिसको बोले यू नीड टू एक्सप्लेन प्रेम्बल. तो इन सब चीज़ों को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. व्हाट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी. हाँ जी स्टूडेंट्स, बिफोर आई एंड अप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. दैट इज टुडे सेशन प्रेम्बल. एक्सक्यूज मी सर. सर आपने बोला कि वन बाय वन पूछिए बेटा. हाँ जी सर, in which language our constitution is written? बेटा ये वैसे तो मेनली इंग्लिश में ही लिखा गया है. आपके सामने जो प्रेम्बल है वो भी इंग्लिश में ही आपके सामने जो है पब्लिश हुआ है, इंग्लिश में ही लिखा गया है. लेकिन इसको हिंदी में भी इसका वर्जन है. इसको अगर हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो उसको हम हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इट इज़ रिटन इन इंग्लिश. और जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चलती है वो इंग्लिश में ही चलती है. सर. हाँ जी सर. हाँ जी सर आपने अभी मतलब इक्वालिटी का बताया आपने, जो थ्योरी में लिखा हुआ है, क्या वो प्रैक्टिकल है? अब बेटा देखो हम स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई चीज़ डिबेट नहीं कर रहे हैं. आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो वो मुझसे पूछ सकते हो इसके ऊपर, ठीक है ना. ये जो प्रेम्बल है उसके अंदर जो चीज़ है वो मैंने आपको बड़ी क्लियरली बता दिया. प्रैक्टिकल में है या नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बोलता है कि प्रैक्टिकल में है. इसीलिए हमारे कोर्ट्स बने हुए हैं, इसीलिए हमारे जो भी डिफरेंट संस्थान बने हुए हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए. लेकिन ये इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं अगर हम बात करें कि जिसमें जो हमारी इक्वालिटी है इसको हैम्पर करने की कोशिश की जाती है. तो उसी को उन्हीं केसेस की सुनवाई करने के लिए कोर्ट है, हमारे पास जुडिशरी है. लेकिन हमारी जो कंट्री है वो इस चीज़ को पूरे तरीके से बोलती है कि हाँ जी आपको इक्वालिटी है,
अगर आपकी इक्वालिटी के साथ आपको कोई चीज हुई है तो आप अपना जो केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरे साथ इक्वालिटी के साथ ये चीज नहीं है। और आप देखते हो बहुत सारे केसेस आते भी हैं और बहुत सारे लोगों को न्याय मिलता भी है इसके ऊपर, अगर उनको लगता है कि हाँ जी मेरे साथ ये चीज ऐसी हुई है इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर। बहुत सारे रिसेंट हमारे रीजनल केसेस हैं, मैं खन्ना के एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि किसी इंसान के साथ पुलिस ने जैसे कोई कार्रवाई की और जब वो चीज़ केस निकल कर बाहर आया कि उनकी कास्ट या उस बेसिस के ऊपर उनको क्वालिटी इनक्वालिटी हुई उनके साथ, तो कोर्ट ने उसके ऊपर पूरा जिसको बोलते हैं डिसीजन लिया और जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनको सस्पेंड भी किया गया और जेल तक भेज दिया गया है उनको। तो न्याय तो पूरी प्रणाली हमारी ट्रांसपेरेंट है, वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। So because one quote is very famous that reservation is a black overrule equality. बेटा देखो मैं भी कह रहा हूँ कि इसमें जो आप चीज़ कह रहे हो वो कुछ और है, जो यहाँ पे लिखी हुई है कुछ और है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष हो जाते हैं। मैंने इक्वालिटी की आपको बात बोली है कि शेर की एग्जांपल इसलिए दी थी ना, हमें अपनी तरफ से लगता है कि हम बिल्कुल सही वो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम दूसरा का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी सोसाइटी रही है कि इसके ऊपर जो कास्टिज्म है वो बहुत ज़्यादा हावी रहा है। अगर हम इसकी बात रखें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिसको हम बोल सकते हैं कि सोचने के बाद भी उन्होंने इसके ऊपर ये सब चीज़ें बनाई हैं कि कास्ट सिस्टम जो है इसको अबॉलिश किया जाना चाहिए, और जो लोग पिछड़े होने के कारण, वर्ग के होने के कारण उनको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई है, इसलिए उनको ऊपर लाने के लिए कि एक मिनिमम लेवल के ऊपर वो ऊपर आ जाएं, ये रिजर्वेशन जो सिस्टम है वो चल रहा है। हाँ जी नेक्स्ट। हेलो हाँ जी गगन। गगन बेटा। यस सर। हाँ बेटा आप रिकॉर्डिंग वो कर दीजिए, वीडियो हैवी हो जाएगी, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लीजिए। यस ओके सर। ठीक है बेटा। हाँ जी, आप इन द मीन टाइम अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।